Hello, good afternoon, SIBSE students. Hello, good afternoon, SIBSE students. Can you hear my voice properly? Can you hear my voice properly? Iram, hello. Yes, ma'am. Okay, our unit number 3 is over. I already recorded each and everything. So I will send you the notes. Do you have the notes right now? बुक है आपके पास? बुक है आपके पास? सबके पास? Yes or no? यस मैम ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस्टरडे आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यस्टरडे आई मीन्स टुडे आई सेंड द रिकॉर्डेड सेक्शन आई ऑलरेडी स्टार्टेड द यूनिट नंबर 4 नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ओके let's start. All communication cannot be the same time. Much some depends upon the send the message to whom and for what purpose. It must be also be understood that the human being has at his common or at his command number methods of communication. Example, we speak at home, college, workplace, official, conveyed through the letters or emails. We even communicate silently using the signs and gesture. In short, we communicate verbally and non-verbally depend on the context. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि we most probably use the non-verbal communication. Okay, that non-verbal communication means verbal communication and non-verbal communication. So here we can say that the non-verbal communication is expressed by the gestures, is expressed by the expression, is expressed by the postures. Okay, so whatever we speak at home, we can't speak in the college. Whatever we speak in the college with the friends, we can't speak at home. Sometimes that in the official matter, that message is conveyed through the mail or letters. So these are the different ways of the communication. According to the Albert Mehrabian, one of the foremost experts in the non-verbal communication, the transmission of the message is effective only when all the three aspects of the communication, verbal, vocal, and visual, are in the tandem with each other. But it does not happen owing to the non-humanitarian limitations. Means इसका मतलब ये हुआ कि when we use the communication or when we try to use the communication at that time the visual vocal means related to sound and verbal means related to the words or related to the words these three come together. Okay, the human messages occur in the following manners. That verbal means 7% words, then vocal means that 38% intonation and the pitch and the volume. Okay, sometimes our one whenever we speak our volumes or our sounds goes up and goes down. Okay, so it is called vocal. Then visual means gestures, postures and all physical movements when we shake our hands or when the movement of the hand or head, that is called the gestures. Okay, so that is considered 55%. Then methods of communication. Can you see the chart here? Can you see the chart? Methods of communication. Yes or no? Can you see the chart here? Yes, ma'am. Okay, so that communication is divided into two Yes. parts, verbal and non-verbal. Verbal is once again divided into two parts, oral and written. Oral, we know that mock tests or that interviews, speeches, meetings, these are called oral communication. And written means memos, minutes, reports, letters are called रिटर्न कम्युनिकेशन. ओके, आगे हम देखते हैं. अभी ये उसमें भी ओरल में भी देखिए आप पर्सनल एंड नॉन पर्सनल है. तो पर्सनल फेस टू फेस, क्लासरूम टीचिंग, पब्लिक स्पीच, कन्वर्जेशन, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, इंटरव्यू एंड मीटिंग.
एंड नॉन पर्सनल होता है तो वो टेलीफोनिक टॉक एंड द रेडियो स्पीचेस, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टेलीफोन मीन्स नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं रिटर्न में क्या होता है, लेटर्स होते हैं, मेमोज। मेमोज मीन्स कि किसी को वार्निंग दिया गया है लेटर्स थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं मेमोज बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखिए, नॉन वर्बल में कहाँ पे दिखाई देता है कि काइनेसिस, ऑक्यूलेसिस, हैप्टिक्स, प्रोक्सिमिक्स, आई थिंक हाँ क्रोमिक्स, देन पैरालिंग्विस्टिक एंड पीच एंड पॉजेस। पैरालिंग्विस्टिक में आता है पीच, पॉज, वॉल्यूम, स्पीड, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो आता है। तो अभी हम वो सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द इजी वाला पॉइंट है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। दिखाई दे रहा है स्लाइड? स्लाइड दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, हेलो। ma'am. Yes, ma'am. The word verbal means connected with the words and the use of words. तो वर्ड्स हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। हम जब भी वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो वर्ड से जुड़ा है और वर्ड्स इमोशन से जुड़ा हुआ है। वर्बल कम्युनिकेशन द स्टैंड फॉर बोथ फॉर स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स यूज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। It can further be divided into oral and written varieties of communication। जैसे अभी हमने चार्ट देखा कि वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस तरह से बटा हुआ है, कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें जितना आपको फॉर एग्जांपल उसमें जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो शायद आप फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो तो स्टोरी बुक में जो पोएट को या जो राइटर को उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसका जो इमोशंस था वो उसने उसमें लिखा। ओके, कि फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सनालिटी पर पढ़ रहे हो, उसने खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है तो उसका जो लाइफ का जो बैड एक्सपीरियंस था, गुड एक्सपीरियंस था, वो उसने लिखा है, तो उसके हिसाब से वो वर्ड्स के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। अभी ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। एज द स्पीच कम्स बिफोर राइटिंग, इट इज़ वर्थ वाइल टू टेक अप द ओरल कम्युनिकेशन, कि जैसे लिखने से पहले जब भी वर्ड्स बोले जाते हैं तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन में लेते हैं। मैन लर्न्स टू स्पीक मच मोर राइटिंग, कि जितना आदमी लिखता है उससे ज़्यादा वो ज़्यादा बोलता है। देर आर नंबर ऑफ ओकेजन्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल व्हेन द स्पीकर स्पीक बिफोर द कमेंटिंग themselves इन द राइटिंग। जैसे कल का एक आपने सेक्शन देखा तो उसमें ऐसा लिखा है कि हमारा ब्रेन में 500 to 700 वर्ड्स पर मिनट वो रेडी होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो वो आई थिंक 120 125 और 150 वर्ड्स हम बोलते हैं। मीन्स उसका 20% हम बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो उससे भी आधा हम ये पॉइंट लिखते हैं। कुछ कहना है? ओके, आगे का देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, कि ओरल कम्युनिकेशन जो स्पोकन वर्ड्स है उससे जुड़ा हुआ है। दैट ओरल कम्युनिकेशन दैट टू टाइप्स, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। जैसे अभी पर्सनल कम्युनिकेशन, द पर्सनल कम्युनिकेशन इज वन विच फेस टू फेस, कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं फेस टू फेस है। Okay, I can't see your face, but whatever the lectures are going to be done in the classroom, that is called personal communication. Okay, classroom teaching, public speech, conversation, group discussion, seminars, interviews, and meetings. These are the example of the personal communication. Non-personal communication उसमें आता है not that non-personal communication is not to face but telephonic form, जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, रेडियो स्पीचेस, these are called the non-personal communication. Now we will discuss the advantages of the oral communication. Advantages क्या है oral communication? There is a higher level of understanding and transparency in the oral communication as it is interpersonal. Okay, because why the people are talking to each other face to face, and that suppose someone don't like, then he can understand, yes, the other person can understand in a much better way, कि जैसे सामने सामने बैठे क्या बोल रहे हैं
उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अभी ये सुनने के काबिल है या नहीं है, या उसको समझ में आया है या नहीं आया है। सो दैट इज द थिंग। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी का जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा है? अभी का हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा है? ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, या कौन सा कम्युनिकेशन है? कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी हम लेक्चर में ले रहे हो? कौन सा कम्युनिकेशन में आप डालोगे, किस कैटेगरी में डालोगे? हेलो। Okay. There is no element of rigidity in the oral communication. There is flexibility for allowing changes in the decision previously taken. Okay, whenever the oral communication is going to be there, at that time there is no rigidity. सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है, एक ही इंसान बोलता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सभी का पार्टिसिपेशन रहता है, सभी मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं, तो सबका पार्टिसिपेशन रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। The feedback is spontaneous in the case of oral communication. The decision can be made quickly without any delay. कि जब भी oral communication होता है तो उसमें decision quickly आ जाता है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा spontaneous, हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिलते रहता है। कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता है, मैं आपको अभी पूछ रही हूँ कि अभी क्या क्या आपको आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही है, आपको स्लाइड दिख रही है, मैं आपको पूछ रही हूँ, पर फीडबैक मुझे जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि फीडबैक आपको जल्दी मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, तो उसकी वजह से चेंजेस भी जल्दी आपको दिखाई देते हैं। Oral communication is not only the time saving but it also the saves upon the money and efforts। कि जो हम oral communication करते हैं तो उसकी वजह से एक तो टाइम सेव तो होता ही है, समय तो बच ही जाता है, लेकिन जो हम बोलते हैं जो पैसा लगता है उसकी वजह से, कि जैसे फॉर एग्जांपल रिटर्न कम्युनिकेशन में जितना पेजेस जाता है, पेन लगता है, जितना सही जाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम बच जाता है और पैसा भी खर्च नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड इन द केस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको शायद पूछा भी जाए कि विच इज द बेस्ट कम्युनिकेशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओरल है, रिटर्न है, तो कौन सा होगा? तो ओरल कम्युनिकेशन, जैसे आप फेस टू फेस बात करते हैं, द कन्फ्लिक्ट एंड द डिस्प्यूट एंड मैनी इश्यूज और डिफरेंसेस कैन बी पुट टू द एंड बाय टॉकिंग टू ओवर देम। कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो उस बात को वहीं पे ख़त्म किया जाता है, कि जब ओरल कम्युनिकेशन की बात होती है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपने मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने फीडबैक दिया कि हाँ मैडम समझ में नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम वही का वही सॉल्व हो गया। लेकिन जब आप फीडबैक ही नहीं देते हैं कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही अच्छा एक जरिया है। ओरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर द टीम वर्क एंड द ग्रुप एनर्जी। हाँ, ओरल कम्युनिकेशन कब होता है? कि उसको टीम वर्क करने के लिए, कि कोई भी आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो उसके लिए एक ओरल कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ओरल कम्युनिकेशन promotes the receptive and encouraging the among the organizations employee। कि ओरल कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइज में, हम बोलते हैं कि जो काम करने वाले इंसान होते हैं, उनको एक उनको एक उत्साह मिलता है, उनको एक एनकरेज किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल सबका फीडबैक लिया जाता है, यहाँ पे कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये उसका प्लस पॉइंट है। अभी जैसे कॉइन होता है उसका दो साइड रहता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, वैसे भी उसका भी कुछ ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन इज लेस ऑथेंटिक देन द रिटन कम्युनिकेशन and informal and not too as organized as the written communication। कि written communication हम किसको बोलते हैं? कि उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सिस्टम से, उसका जो हम बोलते हैं कि लॉजिकली उसका रिकॉर्ड रहता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो बिल्स हम भरते हैं, तो वो एक रिटर्न रिकॉर्ड रहता है। पर ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो सामने सामने फेस टू फेस बोला जाता है, जिसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन इज द टाइम सेविंग as far as the daily interaction is concerned, but in the case of meeting, long speeches consume lot of time and are unproductive at the times।
कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन डेली इंटरेक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन जब हम कोई स्पीच की बात करते हैं या मीटिंग्स की बात करते हैं या इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है या फिर डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। उसमें क्या बताया है कि ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट इजी टू मेंटेन एंड दस इट इज अनस्टेडी। कि ओरल कम्युनिकेशन में जैसे आप फेस टू फेस जब बात करते हैं तो वो अनस्टेडी होता है, वो स्टेडी नहीं होता है, क्योंकि जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो स्टेडी होता है, उसका रिकॉर्ड होने वाला, उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कि फॉर एग्जांपल अकाउंट बिल होते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं हमारे रिजल्ट होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑलरेडी वो रिटर्न रिकॉर्ड है, वो उसका लॉजिकली या ऑर्गेनाइज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। देन देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इंफॉर्मेशन नॉट कंप्लीट एंड मे लेक एसेंशियल। कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं दैट एट दैट टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग शुड बी क्रिएट इफ द प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू, that it requires the attentiveness and the great receptivity on the part of receivers or the audience. Okay, so oral communication में कि जो हम बोलते हैं oral communication में that और वी आर द रिसीवर्स बिकॉज वी आर सेंडिंग द कम्युनिकेशन के होता है, एक तो सेंडर होता है, एक जो बोलता है वो मैसेज भेजता है, और दूसरा होता है जो मैसेज रिसीव करता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सअप पे ओके, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी मैंने पूछा आपको कि आपको समझ में आ रहा है, ओके यू आर गिविंग द आंसर मीन्स यू आर रिसीविंग द मैसेज and you are sending the answer to me at the time I am a receiver. Okay, so this if it is not proper, that then it creates the problem for it creates the problem for audience. If we are not, for example, if you are not attending the lectures properly, okay, though you are sitting in the class, if you are not attending, then what is the motto or what is the aim of attending the class? कि आपको पूछा जाए कि आपके क्लास में आज क्या पढ़ा है और लेकिन आपको कुछ भी नहीं आया, तो उसका मतलब क्या? ओरल कम्युनिकेशन सच एज स्पीचेस इज नॉट frequently used as the legal records except in the investigation task. Yes, ओरल कम्युनिकेशन का जो हम बोलते हैं जो स्पीच होता है उसको ज़्यादातर कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे अभी हमने देखा उसको डेली लाइफ में उसको कंसिडरेशन के लिए अच्छा है, कन्वर्जेशन के लिए अच्छा है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, वेदर इट इज़ टैप रिकॉर्डर, वेदर इट इज़ रेडियो रिकॉर्डर, कोई भी हो तो उसको लीगली नहीं कोर्ट में बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है कभी कभी। तो जब इन्वेस्टिगेशन वर्क मीन्स जो हम बोलते हैं कि ताल्लुक मीन्स हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी केस से ताल्लुकात में है उसका, या फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केसेस है, तो इन्वेस्टिगेशन वर्क में उसका ओरल कम्युनिकेशन उसमें कोई ज़्यादातर कुछ काम नहीं कर सकता, उसमें रिटर्न और लगता है तो कभी कभी उसका काम लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पे काम आता है। ओके, ज़्यादातर आप मूवीज देखते तो आपको ये शायद पता होगा। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन, तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है? द रिटर्न कम्युनिकेशन हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द टूडेज बिजनेस वर्ल्ड, in the today's business world. Okay, so it is essential for preparing worthy promotional materials for business development, speech and came before the writing. तो जब हम ओरल कम्युनिकेशन या रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उस रिटर्न कम्युनिकेशन एक रिकॉर्ड रहता है, उसमें पूरा सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, लॉजिकली होता है कि वो कुछ मटेरियल फॉर एग्जांपल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो मटेरियल होना भी ज़रूरी है। कि फॉर एग्जांपल आपको शायद पता होगा कि सालों पहले जब मोबाइल फ़ोन्स या टेलीफोन वगैरह नहीं थे तो लोग क्या इस्तेमाल करते थे? क्या इस्तेमाल करते थे? लेटर्स। हाँ, लेटर्स।
खत इस्तेमाल करते थे, मीन्स खत भेजते थे। ओके, उसके बाद हम अभी उसका जो पोजीशन है, जो लेटर्स वगैरह है, वो रिटर्न रिकॉर्ड था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन, लेटर्स वगैरह लिखते थे। ओके, अभी उसका पोजीशन टेलीफोन टॉक मीन्स नॉन पर्सन हो गया ना, वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन ने ले लिया, तो उसका जो पोजीशन है अभी वर्बल कम्युनिकेशन ने ले लिया है। अब तो फिर भी जब हम बिजनेस की बात करते तो उसमें क्या जो है, इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, करेक्ट ऑर्डर इन द सेंटेंस फॉर्मेशन एज वेल एज द कोहेसिव composition ऑफ द सेंटेंसेस। कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये बुक है, ओके, ये एफसी का आपका बुक है, अगर उसमें जम्बलिंग आपको सेंटेंस दिए तो आपको पता चलेगा, जैसे अभी ये पढ़ रही हूँ मैं, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज विथ ग्रामर, प्रॉपर ग्रामर उसमें लिखा गया है कि उसमें ठीक से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जम्बलिंग सेंटेंस हो तो आपको पता चलेगा, जम्बलिंग सेंटेंस हो तो आपको पता चलेगा, वर्ड्स ठीक नहीं हो तो आपको पता चलेगा, करेक्ट वर्ड्स नहीं है, करेक्ट ऑर्डर नहीं है, सेंटेंस ऑर्डर नहीं है, तो आपको पता चलेगा, ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे बताया जाए कि कुछ भी हम जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। बट वाइल स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग कॉजेज डिले एंड टेक्स द टाइम एज द फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। जैसे हम स्पीच की बात करें तो स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, कि जैसे मैं अभी बहुत बोल रही हूँ, ओके, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन जब मैं राइटिंग की बात करूँ कि जितना मैंने बोला है आपको लिखना है, तो उतना आप लिख पाओगे, उतना आप लिख पाओगे, जितने वर्ड्स बोले उतना आप जल्दी से लिख पाओगे, हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका हम बोलते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, जो राइटिंग रिकॉर्ड होता है वो कैसा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि अभी उसका एडवांटेजेस क्या है राइटिंग कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का। इट इज द परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दस इट इज यूजफुल वेयर द रिकॉर्ड मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। कि जब भी रिकॉर्ड की बात होती है, जैसे पुलिस थाना हो, या फॉर एग्जांपल तहसीलदार ऑफिस हो, या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बैंक हो, या स्कूल या कॉलेजेस हो, या कोई भी सेक्टर हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यापारी का हम बोलते हैं कि आज कितना माल बिका, या उसने पूरे साल में कितना माल बिका, उसको कितना मुनाफा हुआ, उसको कितना नुकसान हुआ, उसका पूरा रिकॉर्ड उसके बुक में लिखा हुआ रहता है, शायद आपको पता होगा, तो वो होना जरूरी है। It assists it proper delegation of the responsibility. While in the case of oral communication, it is impossible to fix and delegate responsibility on the grounds of speech, as it can be taken back by the speaker or he may refuse to acknowledge। कि जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ओके, कि बाबा फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, प्रॉपर सेंटेंसेस हो, सेंटेंस ऑर्डर हो, ये ग्रामेटिकली वो करेक्ट हो, ये उसका रिटर्न का रहता है। लेकिन जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्ड्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ मैसेज कन्वे किया है कि बाबा आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, पर लेकिन जब तक आपके पास पूरा टाइम टेबल नहीं आता है कि कौन सा पेपर कहाँ है, तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, यस और नो? No, ma'am. नो, दैट इज द रिटर्न रिकॉर्ड। No, ma'am. उसका इम्पोर्टेंस है कि फॉर एग्जांपल बोलने में गलती हो गई कि एफसी का पेपर पहला है या एफसी का पेपर लास्ट में है, बोलने में गलती हो गई तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ओके। कि फॉर एग्जांपल रिटर्न में कैसा होता है कि रिटर्न में आपका रिकॉर्ड होता है, इसी दिन पे इसी डेट पे फिक्स टाइम में आपका एग्जाम दिया जाएगा, तो ये एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जब टाइम टेबल आपको भेजा जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। कि रिटर्न रिकॉर्ड जो होता है वो प्रिसाइज होता है, जैसे एक्यूरेट होता है, एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लेनेशन वाला होता है। इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। कि जितना जल्दी इतना जितना अच्छा और प्रॉपर लिखा हुआ होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, उतना ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा होता है, अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है, ओके।
आगे देखते हैं, इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस, कि जब रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है तो वो रिकॉर्ड्स और रेफरेंसेस के लिए वो एक प्रूफ की तरह काम करता है। लीगल डिफेंसेस कैन डिपेंड ऑन द रिटर्न कम्युनिकेशन एट इज प्रोवाइड द वैलिड रिकॉर्ड्स, कि जब हम कोर्ट कचहरी की बात करते हैं तो उसको उसको लेके जब फॉर एग्जांपल कोई भी केस चल रहा है, जैसे हम लास्ट यूनिट फॉर एग्जांपल PIL अभी हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को कंप्लेन किया है, किसी का कंप्लेन देना है, तो रिटर्न में दिया है, तो वो क्या होता है, वो केस पे डिपेंड होता है, और डिफेंसेस के लिए आपके लिए एक अच्छा होता है और एक वैलिड रिकॉर्ड्स होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में चल रहे हैं और आपका पर्स चोरी हो गया, लेकिन आप पुलिस स्टेशन में फॉर एग्जाम्पल आप पर्स आपका चोरी हो गया, तो आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उसका रिटर्न रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? जब आप कंप्लेन लिखवाते हैं तो उसका रिटर्न रिकॉर्ड लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? जाता है ना? यस और नो? लिखा रहता है मैम। हाँ, लिखा जाता है। क्यों? यस क्योंकि मैम। उस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसे ओरली सब कुछ बोल दिया तो वो ओरली वो कितना याद रख पाएंगे? समझ में आ रहा है? ओरली इतना इंसान उसको याद नहीं रख सकता, उसका वर्ड्स ज़्यादा, चाहे वो स्पीच कितना भी स्पॉन्टेनियस हो, पर उसका जो वर्ड्स होता है वो लिखना जरूरी होता है, तो उसकी वजह से रिटर्न रिकॉर्ड जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं। ऑल्सो इट प्रीफर्स Also, if the receiver of the written message are separated by the distance and if they need to clear their doubts, the response is not spontaneous. यहाँ पे क्या बताया है कि जो रिटर्न मैसेजेस लिखे जाते हैं, कि फॉर एग्जांपल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, ओके, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम दो शब्द, ओके, जैसे हम बोल रहे हैं, ओके, तो दो शब्द के बीच थोड़ा सा पॉज होता है कि नहीं होता है? कि जैसे हम लिखते हैं दो शब्द के बीच, हमको शायद बचपन में हमको बताया जाता है कि हाँ अभी दो शब्द के बीच थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, एक उंगली रखो, दो उंगली रखो, फिर बाद में लिखो। कंटिन्यूस लिखा तो हमें समझ में आएगा, कंटिन्यूस शब्द उसके साथ साथ लिखा हुआ हमको समझ में आएगा? यस और नो? यस और नो? कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए रिटर्न है, वहाँ पे बीच में जगह है, कम्युनिकेशन लिखा है, यहाँ पे बीच में जगह है, इस लिखा है, उसके बीच में जगह है, तो उसकी वजह से आपको ये पढ़ने में तकलीफ हो रही है? मुझे पढ़ने में तकलीफ हो रही है? नहीं। लेकिन ये जो ऐसे कंबाइन लिखा होता तो क्या होता? कंबाइन लिखा होता तो क्या होता? समझ में आता हमको? पढ़ने में जल्दी पढ़ने आता में मैम। दिक्कत आती, समझ में आता कि उसका मीनिंग क्या है, वो समझ में आता नहीं आता। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हमें बचपन से सिखाया जाता है, स्कूल में बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क क्या है, फुल स्टॉप क्या है, कॉमा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है, कि जिस तरह हम पढ़ते हैं तो कॉमा है तो हमें थोड़ा देर रुकना है, फुल स्टॉप है तो हमें थोड़ा और देर ज़्यादा रुकना है, उसका मतलब होता है कि उसका कुछ मीनिंग निकलता है। ओके, डू यू सी दैट कॉमेडी शोज? डू यू सी और डू यू हर्ड एनी स्पीचेस? कि जब हम कोई स्पीच हम सुनते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं ना, जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, वो बोलता तो है, लेकिन रुकता है कि नहीं बीच बीच में? या बीच बीच में कुछ चुटकुले सुनाता है कि नहीं सुनाता है? यस और नो? यस मैम। उसका मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाले ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट करना है तो आपके स्पीच में थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। हाँ, कि जैसे मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल हमारा पीरियड कितने का होता है डेली में, जैसे हम फिजिकली फेस टू फेस होते हैं तो एक पीरियड कितने का होता है, कितने मिनट्स का होता है? 55 मिनट्स, 50 मिनट्स का होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? और जब स्कूल में थे तो तब पीरियड कितने का था? 30 मिनट, क्योंकि हमारा ग्रास्पिंग पावर भी उतना होना चाहिए, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल, हाँ शायद आपको स्कूल में ये आपको एक्सपीरियंस आएगा कि फॉर एग्जांपल एक ही सब्जेक्ट के 2 लेक्चर आए तो फिर क्या होता था? 2 लेक्चर तो अटेंड किया, 1.5 लेक्चर तो अटेंड किया, पर आधे लेक्चर में ध्यान ही नहीं था। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? आधे लेक्चर में ध्यान ही नहीं है,
या फॉर एग्जांपल आज मैथ्स का है, कल हिंदी का है, फिर मराठी का है, उर्दू का है, ऐसा सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता था ना, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता था ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि व्यूअर्स और जो ऑडियंस होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, उनका ध्यान बना रहना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। Effective written communication requires great skill and competencies in the language and the vocabulary used. Poor writing skills quality have negative impact and organization's reputation. तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की बात करें या स्टूडेंट के रिजल्ट की बात करें, तो हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए? अच्छा या बहुत अच्छा या बहुत बुरा? कि जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, सबका जैसा? कैसा होना चाहिए हैंडराइटिंग? कैसा होना चाहिए? हम्म, हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए? हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए सबका? अच्छा या बहुत अच्छा? शायद ज्यादातर हम ऑप्शन देते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो सामने वाले को पढ़ने में इतना दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि आपके हैंडराइटिंग गंदे हैं, आपने सही लिखा है फिर भी वहां पे मार्क्स नहीं मिले? ऐसा स्कूल में एक्सपीरियंस हुआ है क्या? स्कूल में आपको एक्सपीरियंस Yes, हुआ है? ma'am. हाँ, यस, उसका मतलब होता है कि हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटेटिव हैंडराइटिंग होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पीपीटी हम बनाते हैं। ओके, अभी ये पीपीटी आपको रेडीमेड है, आपका बुक का ही है, लेकिन जो पीपीटी मैंने बना शुरुआत में जो पीपीटी बना बना के भेजे, तो उसका हैंडराइटिंग मीन्स उसका जो हम बोलते हैं कि उसमें बीच बीच में स्पेस नहीं हुआ, उसका हैंडराइटिंग। कि फॉर एग्जांपल आपको शायद हम जब पीपीटी बनाते हैं उसमें बहुत सारे कंटेंट दिए होते हैं कि कैलिबरी से लेके झट तक। ओके, तो कुछ ऐसे हैंडराइटिंग है कि जो हमें समझ में नहीं आते, वैसे मैंने डाले तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। ओके, आगे का बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स, emotions, attitude, thoughts through the body movement, gesture and eye contact। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, हमारे थॉट से जुड़ा हुआ होता है, हमारे एटीट्यूड से जुड़ा हुआ होता है, हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रही हूँ तो मैंने अभी ऐसा किया, तो उसका मतलब क्या है कि हाँ, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सुबह से हम बात करें, सुबह से लेक्चर ले रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो जेस्चर बता रहे हैं कि इन अदर वर्ड द नॉन वर्बल एंड द नॉन वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन दैट अकर विदाउट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम समवन्स फोरहेड इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड टू मीन वरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बैठे फ्रॉन। ओके, तो उसका मतलब क्या? कैन यू सी माई एक्सप्रेशन? कैन यू सी? यस और नो? कि जैसे हम हाथ दिमाग पे लगा के बैठते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम वो उसके जेस्चर से पता चलता है कि अभी वो टेंशन में है, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ये समझ में आता है ना? यस और नो? आगे देखते हैं। बट इट कुड बी दैट अदर पर्सन हैज अ हेडेक और द पर्सन इज इन द डीप थॉट। नो डाउट देयर कुड बी न्यूमरस मीनिंग और टू द फेशियल एक्सप्रेशन। कि जैसे मैं अभी ऐसे बैठी हूँ कि हाथ लगा के दिमाग पे बैठा है, तो उसका मतलब है कि वो कोई गहरी सोच में है, या उसको कुछ टेंशन है, या कुछ वो सोच रहा है, या उसको सिर दर्द हो रहा है। ये कोई भी रीजन हो सकता है। ये फेशियल एक्सप्रेशन के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। There are number of possible meanings is multiplied even more when we consider how our culture has conditioned us। कि हमारे कल्चर के हिसाब से उसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। In order to become sensitive to myriad of non-verbal symbols, we will look at the some types of the non-verbal communication। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए, कल्चर के हिसाब से समझने के लिए हमें नीचे जो दिए गए हैं एग्जाम्पल उसको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए टाइप्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला है सबसे पहले काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी मीन्स बॉडी मूवमेंट्स। इट वॉज रे बर्ड विस्टेल
and expert in the field of non-verbal communication coined the term kinesis for the different body expression. It stands for the way the body communicates without words through the body movements, through the movements of its parts. These include the facial expression, gesture, posture, physical appearance, etc. Okay, for example, जैसे हम बाजार में फॉर एग्जांपल जैसे हम मार्केट में जाते हैं हमें हर एक टाइप के इंसान दिखाई देते हैं, हर एक टाइप के इंसान दिखाई देते हैं, एम आई राइट? हर एक टाइप के इंसान दिखाई देते हैं हमारे आसपास। फॉर एग्जांपल कोई Yes, लड़का ma'am. आपको घूर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस टाइप का इस किस टाइप का लड़का है, समझ में आया ना? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी या कोई इंसान हमें गंदी नज़र से देखता है तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है, उसको बोलने की ज़रूरत है, उसको बोलने की ज़रूरत है और हमें वो उसको बोलने की ज़रूरत है, हमें बोलने की ज़रूरत है, यस और नो? पर उसके एक्सप्रेशन पर से हमको पता चल रहा है कि इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं है, उसके बॉडी मूवमेंट्स कुछ ठीक नहीं है, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन। इट हैज़ बीन सेड दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कि हमारे दिमाग में जो क्या चल रहा है वो हमारे फेस पे दिखाई देता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसका हम बोलते हैं ना उसका इम्पैक्ट हमारे फेस पे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई भी पर्टिकुलर डांस देखते हैं, ओके, या डांस फॉर्म देखते हैं जैसे भरतनाट्यम, कथकली, ओके, भरतनाट्यम, कथकली, ये डांस जो फॉर्म है क्लासिकल फॉर्म है, उसमें ज़्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंखों का इस्तेमाल किया जाता है, शायद आपको पता हो या नहीं पता, क्योंकि आंखों के एक्सप्रेशन से, आंखों के जो हाव भाव होते हैं उसके थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं वो समझ में आता है। आपने देखा होगा शायद, देखा है या नहीं देखा है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, उससे हमको समझ में आता है। ओके, दूसरा होता है कि फॉर एग्जांपल आप डांस कर रहे हैं लेकिन आप कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं, तो उसका कुछ मजा होगा, उसका कुछ मजा होगा कि फॉर एग्जांपल आप वो एंजॉय No, कर रहे ma'am. हैं, नहीं एंजॉय कर रहे हैं, नहीं एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। कि आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कोरियोग्राफर नहीं है, कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्मेट में बैठे हो नहीं, लेकिन जैसे हम नॉर्मली जैसे डांस करते हैं तो हम जितना डांस एंजॉय करते हैं उतना एक्सप्रेशन हमारे मुंह पे दिखाई देता है, एम आई राइट? हमारे मुंह पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, that lines on our forehead, that eyebrows, muscles of our cheeks, our lips is a smile or is surprise in all speak louder than the words। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने स्माइल कर दिया, ओके, मैं गुस्से में हूँ फिर भी मैंने स्माइल कर दिया, मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ ऐसा किया कि मुझे गुस्सा आ गया तो मेरी आंखें बड़ी हो गई, तो उसको बताने की ज़रूरत है, हाँ, बताने की ज़रूरत है। मेरी आईब्रोज ऊपर हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ? हमारी जब आईब्रोज ऊपर होते हैं तो उसका मतलब क्या आता है कि आप क्या बताना चाहते हैं, समझ में आया? क्या गुस्से में है? ओके, अगर आप स्माइल कर रहे हैं मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज नॉर्मल। Yes, ma'am. हाँ, तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं।